हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मैं हूँ एकलव्य। बात करें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 31 मई 2026 का है। चलिए शुरू करते हैं। आज of May 31st 2026, which country has explicitly stated that no nuclear deal with the United States will be finalized until their specific national rights are secured by the US administration? Option A Saudi Arabia, option B Iran, option C North Korea, option D Venezuela. ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर ईरान। ईरान का पॉइंट यह है कि जब तक नेशनल राइट्स सिक्योर नहीं होंगे तब तक कोई डील साइन नहीं होगी। याद रखें, ईरान वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट में स्थित एक प्रमुख देश है जिसका बॉर्डर्स कास्पियन सी और पर्शियन गल्फ से लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। NVIDIA announced on May 31st 2026 that which new platform is ramping into full production to power agentic AI factories worldwide? Option A Grace Blackwell, option B Vera Rubin, option C Spectrum X Photonics, option D Bluefield 4. ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर बेरा रूबिन प्लेटफॉर्म। बेरा रूबिन प्लेटफॉर्म को एनवीडिया ने इससे एजेंटिक एआई फैक्ट्रीज के लिए लॉन्च किया है जो पहले 10x ज़्यादा थ्रूपुट देती हैं। यहाँ ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर बेरा रूबिन प्लेटफॉर्म। चलिए नेक्स्ट। Which Southeast Asian nation confirming a deal at the Shangri-La Dialogue on May 31st 2024 is set to receive BrahMos supersonic cruise missiles from India? Option A Indonesia, option B Philippines, option C Vietnam, option D Thailand. ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर वियतनाम। ब्रह्मोस डील इंडिया और वियतनाम के बीच सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सप्लाई करने का एक एग्रीमेंट हुआ है। याद रखें, वियतनाम ये साउथ ईस्ट एशिया में है जो साउथ चाइना सी से बॉर्डर शेयर करता है और इसकी कैपिटल हनोई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। According to reports from late May 2026, which country has renewed its fuel subsidies
specifically due to the ongoing drag of the West Asia conflict on global energy markets? Option A, Egypt. Option B, Brazil. Option C, Turkey. Option D, South Africa. ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, ब्राजील। ब्राजील ने वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी देखते हुए सब्सिडीज रिन्यू किए हैं। याद रखें, ब्राजील ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है जो अमेजन रेन फॉरेस्ट के लिए दुनिया भर में फेमस है। चलिए नेक्स्ट। Who did US President Donald Trump publicly criticize on May 31, 2024 regarding a meeting held at the Vatican City with the mayor of Chicago? Option A, Pope Leo XIV. Option B, the UN Secretary General. Option C, the Italian Prime Minister. Option D, the French President. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पॉप लियो 14। ट्रम्प ने पॉप लियो 14 को चिकागो मेयर के साथ मीटिंग करने के लिए क्रिटिसाइज किया है। याद रखें, वाटिकन सिटी। वाटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा इंडिपेंडेंट स्टेट है जो इटली के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट। The death toll from a major industrial chemical spill at a paper plant in Washington state, as reported by authorities on May 30, 31, 2024, rose to how many fatalities? Option A 5, Option B 8, Option C 11, Option D 15. Option C is the correct answer, 11. वाशिंगटन स्टेट के पेपर प्लांट में केमिकल स्पिल से 11 लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आज ऑफ May 31, 2024, which region has reported that Ukrainian drones are penetrating Russian air defenses and reaching the border with Rostov Oblast? Option A, Luhansk Oblast. Option B, Donetsk. Option C, Crimea. Option D, Kursk. Option A is the correct answer, Luhansk Oblast. लुहांस्क यूक्रेन का एक ईस्टर्न रीजन है जो अभी रूसियन ऑक्युपाइड जोन्स में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which annual security summit held in Singapore
and concluding around May 31st, 2026, served as the venue for the announcement of the India-Vietnam BrahMos missile agreement. Option A, Raisina Dialogue. Option B, Shangri-La Dialogue. Option C, Munich Security Conference. Option D, Asian Regional Forum. Option B is the correct answer, Shangri-La Dialogue. सांग्रीला डायलॉग ये एशिया का प्रीमियर डिफेंस समिट है जो हर साल सिंगापुर में आयोजित होता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ इंटरनेशनल डिफेंस मिनिस्टर्स और मिलिट्री चीफ्स स्ट्रैटेजिक इशू डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हाट स्पेसिफिक पैरामीटर इज साइटेड इन रिसेंट रिसर्च में 2026 टू हेल्प डिस्टिंग्विश जेन्युइन आइस सिग्नेचर्स फ्रॉम राडार सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड बाय रफ रॉकी टेरेन ऑन द मून? ऑप्शन ए, सोर्स एल्गोरिथम. ऑप्शन बी, DOP राडार पोलारिमेट्रिक पैरामीटर. ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र मॉस्को इंडेक्स. ऑप्शन डी, एजेंटिक थ्रूपुट मैट्रिक. यहाँ ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, DOP. सॉरी, DOP यानी डिग्री ऑफ पोलराइजेशन. डिग्री ऑफ पोलराइजेशन. इन शॉर्ट DOP इसका यूज राडार सिग्नल्स में यूज है। मून के साउथ पोल पर आइस का पता लगाने के लिए यह टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। मून के साउथ पोल पर आइस का पता लगाने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है ना? DOP डिग्री ऑफ पोलराइजेशन. चलिए नेक्स्ट, Which global index rebalancing in late May 2026 has been cited for contributing to India's declining weight in emerging markets, largely due to AI-driven gains in Taiwan? Option A, FTSE Emerging. Option B, MSCI Emerging Markets Index. Option C, S&P Global 1200. Option D, Bloomberg Commodity Index. Option B is the correct answer, MSCI Emerging Markets Index. MSCI इंडेक्स एक ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स है जो इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्टर को पैसा इन्वेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, MSCI इंडेक्स क्या है? एक ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स है जो इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट करने में मदद करता है। यहाँ ताइवान का सेमीकंडक्टर मार्केट में AI बूम के कारण ग्रो हुआ है, जिसके MSCI का वेटेज बढ़ गया है। यहाँ किसका वेटेज बढ़ा है?
न ताइवान का बढ़ा है और इंडिया का घटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 40 मिनट में आपको ख़त्म करना है। डेली विजिट कीजिए। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो कीजिए। और आज के लिए इतना ही, रखता हूँ। धन्यवाद।